Hello, hello everyone. Good evening, all of you. Myself Rahul Tyagi and Faculty of Chemistry. तो बाकी चीजें बाद में करेंगे. पहले first we will focus on the chapter. And today we are going to discuss first chapter, mole concept. It's a mother of all chapter. अगर आपके you have very poor basic in chapter 1 और chapter 1, तो आपको पूरे केमिस्ट्री में हमेशा एक प्रॉब्लम रहेगा हमेशा. तो what's the name of first chapter? Mole concept. Yeah, some basic concept of chemistry. Can anyone tell me why we study mole and what is the exact definition of mole? हाँ जी बच्चों इधर प्लीज. Why we study mole? कोई भी मेरे ऊपर आके इम्पोज करेगा you have to study mole. Why I will study mole? What is the significance of mole? Sure. Can you tell me? C plus O2 goes to CO2. If suppose 12 gram of carbon is there, 12 gram of oxygen is there, how many gram of CO2 will form? कोई भी बच्चा? If suppose 12 gram carbon is there and 12 gram oxygen is there, then how many gram of CO2 will form? Twelve gram, 24 gram. Anyone else? Yes. 33, 36 gram. Okay. How you calculate this answer? Just on the basis of intuition. Okay, this is 12. सर ने बोला कि 12 नहीं हो सकता, 24 नहीं हो सकता. Then I should say that 36 must be the correct answer. So let's see and understand the significance of mole. अगर आप मोल का सिग्निफिकेंस आपको नहीं पता होगा, you never understand the chemistry. Let's see. यहाँ पे what I'm seeing, one atom of carbon is combining with one molecule of oxygen and they are forming one molecule of CO2. That is correct information. 1 gram of carbon is combining with 1 gram of oxygen and forming 1 gram of CO2. It's not a correct information. ये correct information नहीं है ना? That means chemistry operates through the number. Chemistry किसके through operate होती है? Numbers के through, not through mass. अब यहाँ पे मैं देखता हूं, what I am seeing here, in 12 gram carbon, there might be so many atoms of carbon. In 12 gram oxygen, there might be so many molecules of oxygen. So first I have to calculate the number of carbon atom in 12 gram. Number of molecules of oxygen in 12 gram. Then I can calculate the number of CO2 molecules here. So what is the significance of mole here? Because chemistry operates through the number. Chemistry operates through the number, not mass. तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर को एक मोल का नाम दे देते हैं, and that's 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23. It's also called Avogadro number. It also called, कहां से आ गया? हवा में.
ऐसे ही एवोगाड्रो जी ने ऐसे सोचा कि चलो एक मोल का ऐसे ही नंबर सोच लेते हैं. इट्स लाइक ए डजन. In one dozen there is a 12 number. Similarly, 1 mole is equal to this number. Nothing more than this. इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है मोल का. मोल इज ए नंबर and its magnitude is 6.022 into 10 to the power 23. And why we study the mole? Because chemistry operates through the number, not mass. So first I have to calculate the number in 12 gram. अब ये नंबर कैलकुलेट करना मेरे लिए इट्स बिकम डिफिकल्ट एवरी टाइम, बिकॉज इन केमिस्ट्री दे विल मेंशन समटाइम ग्राम मास, समटाइम दे मेंशन द वॉल्यूम, एंड समटाइम दे इटसेल्फ मेंशन द नंबर. तो हर बार मुझे क्या करना पड़ेगा, ए मास हो, वॉल्यूम हो, उस नंबर हो, उसको मोल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब मेरा आंसर आएगा. तो यहां पे क्या होगा, फर्स्ट आई हैव कैलकुलेट द मोल 12 ग्राम. इसका एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? 12 एटॉमिक मास. बच्चों लेट्स अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री. कैन यू टेल मी एटॉमिक मास इज ए मास और नंबर? बिकॉज 6 carbon 12. Or how I calculate this 12? It's a proton plus neutron. So it's a number or mass? अगर ये नंबर है तो मैं इसको मास क्यों बोलता हूं, और अगर ये मास है तो इसका यूनिट क्यों नहीं है? कोई भी बच्चा, लेट्स अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री. बेसिकली केमिस्ट्री क्या है उसको समझते हैं ना पहले. अगर ये नंबर है तो मैं इसको मास क्यों बोला? व्हाई कॉल दिस वन एटॉमिक मास? इट्स एटॉमिक नंबर ना, आई सेड, एंड दिस एटॉमिक मास. तो अगर ये मास है तो इसको मैं नंबर से हर बार क्यों कैलकुलेट करता हूं? इट्स ए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. इट इंडिकेट इट्स ए नंबर. And it also had no unit. If suppose it's were the mass, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होता, कोई यूनिट होती ना. तो इसका मतलब मेरे को एटॉमिक मास एग्जैक्टली नहीं पता, बस पता है कि ये ऊपर कोई नंबर होता है उसको एटॉमिक मास बोलते हैं और नीचे एटॉमिक नंबर होता है. तो देखो, सोचो अपने आप को. वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री सिंस लास्ट 2-3 ईयर, और 9th क्लास से आप पढ़ रहे हैं कि भाई एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है. भाई मास होता है कि नंबर होता है, उसको चेक करते हैं एक बारी. एक्चुअली 6 कार्बन 12 ये मास ही होता है. क्या होता है? जैसे 1H1, हैव यू सीन 1.008, इट्स एटॉमिक मास. अगर ये नंबर होता तो ये 0.008 नेवर बी देयर, बिकॉज proton and neutron never be in fraction, never be in fraction. तो let's understand. सपोज करो मेरा वेट कैलकुलेट करो, मतलब ऐसे ही गैस करो कि मेरा वेट कितना होगा. आई थिंक मैं ही दे देता हूं आंसर, अराउंड 75 kg, 70 kg. आप इसका वेट कैलकुलेट कराता हूं तो कितना वेट होगा इसका? 100 ग्राम, 200 ग्राम. And suppose I calculate the mass of one here, so what is the mass? Might be in milligram या microgram. What you are doing every time, you are changing the unit. You are changing the unit. तो अगर आप यूनिट चेंज कर रहे हैं क्योंकि मास बहुत कम होता जा रहा है, तो सिमिलरली जब मैं मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कैलकुलेट करूंगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कैलकुलेट करूंगा तो उसका मास बहुत कम होगा. तो हमने एक यूनिट कैलकुलेट कर ली, AMU. एंड आई नो वेरी वेल कि आप सबको इसका फुल फॉर्म पता होगा कि 1 AMU इज इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट होता है. लेकिन इससे आगे का आपको बस इतना पता होगा कि भाई ये कार्बन के एक एटम का मास का 1/12 होता है. ठीक है.
I think that is not the sufficient information. That is not the sufficient information. What is mu? First, it is a unit. It is a unit to calculate the mass. सबसे पहले ये यूनिट है क्या मेजर करने की, नॉट कैलकुलेट, मेजर करने की क्या यूनिट है बच्चे? मास को मेजर करने की एक यूनिट है. एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन. मास ऑफ प्रोटॉन. बच्चों मैं सारे क्वेश्चंस पे आऊंगा, ये जो मैं पीछे छोड़ के आ रहा हूं ना, आपको लग रहा होगा सर पहले वहां पे कैलकुलेट नहीं किया, एटॉमिक मास से भी जंप मार गए, एटॉमिक एएमयू पे आ गए डायरेक्ट. तो आई विल कम वन बाय वन करके, क्योंकि उसका आंसर यहां से निकलेगा. तो एएमयू क्या होता है, क्या बोलोगे किसी को जाके, व्हाट इज एएमयू? इट इज ए यूनिट टू मेजर द मास एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ वन प्रोटॉन. अब कैसे आता है? सपोज करो मैं कार्बन का आपको देता हूं, कार्बन का 12 दे दिया मैंने, कार्बन का 12 एएमयू लिख दिया, यहां पे मेंशन कर दिया, कार्बन का 12 ग्राम यहां पे मेंशन कर दिया. 12 क्या है इसका एटॉमिक मास. 12 एएमयू क्या है? व्हाट इज 12 एएमयू? एग्जैक्टली बच्चों हमारे साथ भी यही होता था कि 12 एएमयू 12 ग्राम. सॉरी हम सारों को ना एक ही समझते थे कि 12 एएमयू भी एक ही चीज है, 12 ग्राम भी एक ही चीज है, और 12 भी एक ही चीज है. एक्चुअली 12 इज द एटॉमिक मास. 12 इज द एटॉमिक मास. 12 AMU is the mass of one atom of carbon. Write down in your copy. 12 AMU is the mass of one atom of carbon. And 12 gram is the molar mass. And 12 gram is the molar mass. 12 is atomic mass. 12 is atomic mass. 12 AMU is the mass of one atom of carbon, and 12 gram is, हाँ दे दे, हाँ बाद में दे देना. 12 ग्राम इज द मोलर मास. अब इनको वन बाय वन करके बच्चों अच्छे से समझते हैं. तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा अब एएमयू से. एएमयू क्या होता है कि एग्जैक्टली एटॉमिक मास यूनिट होता है, इसको यूनिफाइड मास भी बोलते हैं. और चलो एक थोड़ा सा और स्टार्ट करना पड़ेगा आपको. कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन. कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन. डू इट फास्ट इन ग्राम. कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम. जल्दी फास्ट. Calculate the mass of one atom of carbon. Let's say how much? Let's see. देखो हम बेसिक से इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं बच्चों. कार्बन का एक एटम होता है, वन एटम ऑफ कार्बन कंटेन 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन. If I add the mass of 6 proton plus 6 neutron plus 6 electron is equal to क्या हो जाएगा? Mass of one atom of carbon. Mass of one atom of, got it or not? ठीक है. मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन. ऑल्दो मास ऑफ न्यूट्रॉन लिटिल बिट थोड़ा सा ज्यादा होता है किससे? मास ऑफ प्रोटॉन. मास ऑफ प्रोटॉन एग्जैक्टली कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 24 ग्राम. Got it?
दैट मीन्स, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम. Let's see. Mass of electron is approximately 10,000 times lesser than mass of proton. Mass of electron is 10 to the power minus 4 का डिफरेंस है ना, तो 10,000 टाइम्स जो है लेसर होगा. That means I can neglect the mass of electron. क्योंकि अगर मैं प्रोटॉन का मास 10,000 kg एज्यूम करता हूं तो इलेक्ट्रॉन का मास 1 kg होता है. तो 10,000 प्लस 1 kg और 10,000 1 kg और 10,000 और 10,000 1 kg के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. तो आई कैन नेग्लेक्ट ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो नाउ आई कैन राइट हियर मास ऑफ 12 प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन. तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन. गॉट इट और नॉट? अब हम एएमयू कैसे पढ़ते हैं बच्चों? एएमयू ऐसे ही तो पढ़ते हैं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, वन एटम ऑफ कार्बन और डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय. और यहीं पे अगर मैं मास ऑफ 12 प्रोटॉन को 12 से ही डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाता है मेरा? मास ऑफ वन प्रोटॉन. दैट मीन्स एग्जैक्टली तो नहीं हो सकता क्योंकि मैंने न्यूट्रॉन का मास नेग्लेक्ट किया, वहां इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट किया, और न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन के मास से, तो वो भी मैंने इक्वल मान लिया. तो एग्जैक्टली ये प्रोटॉन के मास के इक्वल नहीं होता, पर अप्रोक्सीमेटली 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन लिख सकता हूं ना मैं यहां से. बच्चों दोबारा बताऊं मैं, इफ सपोज यू आर नॉट गेटिंग इट. लेट्स से इफ सपोज आई हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन. अंडरस्टैंड फ्रॉम कूल माइंड से. तो व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट? आई हैव टू सम मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन plus mass of 6 electron. That is exactly equal to the mass of 1 atom of carbon. Now, mass of electron is very very low, या बहुत ही less है. कितना है वो? 10,000 टाइम्स का. मैं अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर माइनस 4 का डिफरेंस आ रहा है. तो आई कैन नेग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. और वहां पे मैंने क्या किया? अगर मैंने प्रोटॉन का मास वहां पे नेग्लेक्ट किया, सॉरी इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट किया है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कौन हैवियर है? न्यूट्रॉन. तो इन प्लेस ऑफ न्यूट्रॉन आई हैव टेकन द मास ऑफ प्रोटॉन. तो समहाउ आई कंपनसेट दिस मास. तो एग्जैक्टली ये किसके इक्वल आ जाएगा? मास ऑफ 12 प्रोटॉन के. और अगर मास ऑफ 12 प्रोटॉन किसका? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन आया, मैंने उसको 12 से डिवाइड कर दिया, तो दैट इज आल्सो इक्वल टू द 1 AMU ना. तो 1 AMU को मैं बोल सकता हूं 1 एटम ऑफ कार्बन का जितना मास होता है उसका 1/12 कर दूं, या फिर अप्रोक्सीमेटली मेरी सारी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी कि मैं मास ऑफ 1 प्रोटॉन एज्यूम कर लूं, मास ऑफ 1 प्रोटॉन. तो होप फर्स्ट पॉइंट यू गॉट इट. 12 AMU. अब आई टोल्ड यू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन मैंने कितना लिखा था? 12 AMU लिखा था ना बच्चों. मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 AMU. तो 12 AMU को मैं कैसे लिख सकता हूं? 12 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम में लिख सकता हूं ना. 12 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम. अब एटॉमिक मास क्या होता है? ये बात यहां से समझ आएगी बच्चों. एटॉमिक मास होता है कोई एटम 1 AMU से जितने टाइम्स हैवियर है, कोई एटम 1 AMU से जितने टाइम हैवियर है वो उसका एटॉमिक मास होता है. द नंबर ऑफ टाइम्स द एटम इज हैवियर देन किससे? 1 AMU से, वो उसका क्या हो जाता है? एटॉमिक मास.
अब एटॉमिक मास यूनिट का जो यूनिट होगा वो ग्राम में भी हो सकता है, एम में भी हो सकता है। अब कार्बन के एक एटम का मास आपका आया 12 AMU। 12 AMU आया था ना एक एटम का मास। तो अगर मैं ये कितने टाइम्स हैवियर है ये 1 AMU से, AMU से AMU कैंसिल हो गया तो कितना बचा 12। दैट्स व्हाई इट्स ए यूनिट लेस, दैट्स व्हाई इट इज ए, देयर आर टू रीजन। फिर से समझो ये एटॉमिक मास क्या होता है। हाउ मेनी गोट, हाउ व्हाट इज द एटॉमिक मास एग्जैक्टली? You can raise your hand. What is the atomic mass exactly? चलो, let me explain again. देखो, आराम से लेते हैं फिर, मैं क्रैश कोर्स की तरह नहीं। 1 AMU होता है, एक यूनिट है। राइट डाउन ऑन योर कॉपी। 1 AMU is equal to, it is a unit to measure mass, first point. It is a unit to measure the mass, second point. Its magnitude is approximately, mass of proton, and that is equal to 1.6 into 10 to the power minus 24 gram. बच्चों, hope you got the point. और exactly 1 AMU क्या होता है? Exactly mass of one atom of carbon divided by 12, divided by 12। अब मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा? मास ऑफ 12 प्रोटॉन के इक्वल आएगा अप्रोक्सीमेटली ना। और अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन ही बच जाएगा ना बच्चों। तो 1 AMU it's a very similar to the mass of 1 proton, first point। अब हाइड्रोजन का होता है 1.1008। व्हाट इट इंडिकेट, ये इंडिकेट करता है कि हाइड्रोजन का एटम 1 AMU से 1.008 टाइम्स हैवियर है। व्हाट इट इंडिकेट? द वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 टाइम्स हैवियर देन किससे? 1 AMU। तो एग्जैक्टली ये मीनिंग होता है एटॉमिक मास का। एक और एग्जांपल लेते हैं। 8 ऑक्सीजन होता है आपका 15.99 होता है, एग्जैक्टली 16 नहीं होता। अगर आप अपना गूगल करेंगे या कोई अपनी बुक्स के अंदर जाएंगे, एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है बच्चे, कौन बताएगा? इस एटॉमिक मास का मीनिंग क्या हुआ? It is what exactly meaning 15.99? It is 15.99 times heavier than किससे? 1 AMU से। तो ये एक रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया ना। जो एटॉमिक मास है वो कैसा मास हो गया? रिलेटिव मास हो गया। ठीक है, अगर मैं किसी बच्चे का मास स्टैंडर्ड मास मान लूं और उससे सब बच्चों का मास मेजर करूं तो वो एक नंबर ही आएगा ना। क्योंकि सबसे छोटे बच्चे का, कोई सपोज करो किड्स है, उसका मैं जो मास मेजर कर लेता हूं 10 kg है और उसके रेस्पेक्ट में आप लोगों का मास देखता हूं तो वहां पे क्या मेरे को देखने को मिलेगा? भाई ये इस किड से 2 टाइम्स हैवियर है, ये इस किड से 2.5 टाइम्स हैवियर है। तो दैट इज एग्जैक्टली एटॉमिक मास। गॉट इट और नॉट? So 15.99 is the one atom of oxygen is 15.99 times heavier than 1 AMU. Hope I told you the two concepts. First, what is exactly AMU, and second,
What exactly is atomic mass? Got it? Now understand third point. कार्बन का 12 क्या था बच्चों? एटॉमिक मास 12 AMU, mass of one atom of carbon, and 12 gram is what is exactly molar mass? What is exactly molar mass? The mass of Na entity, जो Na entity है उसका मास कितना हो जाएगा आपका? मोलर मास। देखते हैं इसको, लेट्स सी। मास ऑफ वन एटम कितना है कार्बन का? 12 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम लिख सकता हूं बच्चों। दैट इज एग्जैक्टली मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। एंड व्हाट इज मोलर मास? मास ऑफ Na मतलब एवोगाड्रो नंबर। Na मींस एवोगाड्रो नंबर। एंड अगर Na एटम का मैं देखूं तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये किस में आ जाएगा बच्चे? ग्राम में ही आएगा ना। तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी और आएगा 1। क्या आएगा? 1। और ये कितना आ जाएगा? 12 ग्राम। तो ये जो नंबर है ना आपका एवोगाड्रो नंबर, ये कोई हवा से नहीं आया बच्चों कि ऐसे ही सोच लिया कि भाई ये नंबर, चलो इस नंबर को सोच लेते हैं। ये एग्जैक्टली क्या होता है कि जो 1 AMU होता है उसका इनवर्स होता है। जैसे 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। गॉट इट और नॉट? पता चला एवोगाड्रो नंबर कहां से आया? इट इज ए इनवर्स ऑफ द मास ऑफ वन, एग्जैक्टली मास ऑफ 1 AMU। पर मैं बोल सकता हूं कि मास ऑफ 1 AMU मास ऑफ 1 प्रोटॉन के ही ऑलमोस्ट इक्वल होता है। अब मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूं बच्चों? क्योंकि ये बोलते होगे सर मास ऑफ 1 प्रोटॉन ही तो 1 AMU हो गया हमारे हिसाब से। तो एक्चुअली जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड होते हैं ना तो वहां पे न्यूक्लियर फोर्स होता है, और फोर्स के अंदर होती है एनर्जी, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो वहां पे मास का भी डिस्ट्रक्शन होता है। किसका भी डिस्ट्रक्शन होता है? मास का। E इक्वल टू mc² से। तो वो एग्जैक्टली सेम नहीं आता कि आप उसको 10 डेसिमल तक ये सोचे कि ये सेम ही आएगा, वो वहां तक सेम नहीं आएगा, वो कुछ नंबर तक सेम आएगा, क्योंकि E इक्वल टू mc² से मास और एनर्जी का कन्वर्जन हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट और नॉट? ये वाला दोबारा से बताएं। देखो यहां पे 1 AMU में 1 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन ले रहा हूं और उसको डिवाइडेड बाय क्या कर रहा हूं? 12 कर रहा हूं। यही कर रहा हूं ना। अब मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन में कार्बन के पास कितने प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाई बाय 12। पर ये एग्जैक्टली 1 प्रोटॉन का मास है क्या? मैंने किसका मास नेग्लेक्ट किया? इलेक्ट्रॉन। और किसका कम ऐड किया है? प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन का ज्यादा था, तो वो ज्यादा डिफरेंस बनाता नहीं है, वो ज्यादा डिफरेंस बनाता। इसलिए हम बोल देते हैं कि मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है? मास 1 AMU। गॉट इट? चलो, होप 2 थिंग्स आर क्लियर। फर्स्ट AMU एंड सेकंड एटॉमिक मास एंड थर्ड वन इज मोलर मास। गॉट इट? अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, उस पे जो मैंने फर्स्ट टाइम में आपको दिया था। यहाँ पे C+O2 गोज टू आपका CO2। मैंने बोला ये 12 ग्राम है, ये 12 ग्राम है, और ये कितने ग्राम बनेगा? फर्स्ट आई हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ, क्या नंबर ऑफ एंटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? एंटिटी। तो एंटिटी किस में कैलकुलेट करूंगा? नंबर तो मैंने भी एक स्टैंडर्ड चीज मान ली भाई, मोल ले लेता हूँ। कहीं पे जाते हैं, इफ आई आस्क द मेरे को 60 बनाना दे दे, दैट इज थोड़ा सा उल्टा लगता है, और मैं कहूंगा मेरे को 5 डजन दे दे, वो ज्यादा अच्छा लगता है ना। ऐसे ही हम यहाँ पे ना मोल की बात करेंगे। एग्जैक्टली बात हमें नंबर की करनी थी, पर हमने नंबर को उनको ट्रिलियंस बिलियंस की बात करूंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो एक पर्टिकुलर नंबर को मैंने एक मोल सोच लिया कि भाई इतने नंबर है तो एक मोल हो जाएगा। तो इस मोल को ड्राइव करने के लिए मेरे पास क्या क्या चीजें होती हैं? पहली चीज होती है मास। क्या होती है? मास। मास को मैं अगर एटॉमिक मास से डिवाइड कर दूं
एटॉमिक मास मैंने क्या सही लिख दिया क्या? इज इट करेक्ट एटॉमिक मास? मे बी बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा एक्सपर्टीज भी होगी और वो बता देंगे कि हाँ ये सही है या गलत है। यहाँ पे करेक्ट वर्ड एटॉमिक मास आना चाहिए क्या? यस और नो? यस और नो? दैट मीन्स बेटा अगर मैं एटॉमिक मास लूंगा, क्या लूंगा? एटॉमिक। एटॉमिक मास होता है यूनिटलेस, क्या होता है? और मास की कोई यूनिट होगी, तो मास की यूनिट होगी तो मोल की भी यूनिट आ जाएगी, ग्राम, सीधी सीधी। तो वो तो गलती हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? गलत। तो सीधा क्या लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? मोलर मास। क्या लेना पड़ेगा बच्चों? मोलर मास। एग्जैक्टली एटॉमिक मास आपको देखने को मिलता है, कोई भी लिख देता है ऐसे ही मुंह उठा के, इट इज एटॉमिक मास, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अरे सर एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती, और मास को आप बिना यूनिट के आप डिवाइड करेंगे तो मोल का यूनिट आ जाएगा ग्राम, और अगर मोल की यूनिट ग्राम में करोगे तो केमिस्ट्री तो हो गया। तो मास डिवाइडेड बाय क्या करूं मैं? मोलर मास। तो मेरा क्या आ सकता है? मोल। फर्दर मोल को मैं कहां से भी ड्राइव कर सकता हूं? बोलो। वॉल्यूम से। किससे? वॉल्यूम से। पर यहां पे कुछ कंडीशन है कि भाई जो वॉल्यूम होना चाहिए दैट मस्ट बी इन लीटर, दैट मस्ट बी इन लीटर, एंड द कंडीशन शुड बी एनटीपी एंड एसटीपी, एनटीपी एंड एसटीपी। मैं भी बहुत सारे बच्चे दे डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एनटीपी एंड एसटीपी। एनटीपी बोलो कितना प्रेशर लो? बोलो प्रेशर 1 बार 1 atm, 1 atm। टेम्परेचर, एग्जैक्टली टेम्परेचर 0 degree centigrade. Remember this one. At NTP, pressure is 1 atm and temperature is 0 degree centigrade. Understand this one. Second, at STP, प्रेशर कितना होगा आपका? प्रेशर 1 बार। What is the exactly difference between the ATM and bar? कौन ज्यादा होता है? ATM थोड़ा सा ज्यादा होता है बच्चों। कहां पे भी ज्यादा होता है? थोड़ा सा। एटीएम हल्का सा ज्यादा होता है, किससे? बार से। और टेम्परेचर अगर आप बता देंगे तो मेरी तरफ से रिवार्ड ही है आपको। एसटीपी पे टेम्परेचर कितना लेते हैं? कोई भी बता देगा। हाँ बोलो बेटा। 2 275 या 273? 273 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन? केल्विन। श्योर है आप? तो सुनो बात अच्छे से बच्चों। जब हम मोल चैप्टर वाला ये कंसेप्ट पढ़ते हैं तो बेसिकली यहाँ जब हम मोल कैलकुलेट करते हैं, जो जर्नली यहाँ पे हमारी गैसेस होती है, क्या होती है? गैसेस। एचटीपी पे एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा मेंशन है कि भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही लेते हैं, पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एग्जैक्टली ये नहीं होता। स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो होता है ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वो एंटिटी सबसे ज्यादा स्टेबल हो, वो टेम्परेचर क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। पर मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में हम क्या कैलकुलेट मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 0 डिग्री, क्योंकि गैसेस होती है। कोई मुझे बता सकता है कि गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होता है? एनीबडी एल्स? What is the exactly difference between gas and vapor? कोई बताए बच्चे? और दे आर द बेसिक्स, दैट्स व्हाई आई चूज दिस टॉपिक कि बच्चों को पहले बेसिक्स बताता हूं और फिर रेडी रहना। कल या नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस पर सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा, दैट नीड टू मच इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन कि भाई मेरे को अच्छा ये एटम यहाँ पे रखा है तो कैसे ये सॉल्व मैं कर पाऊंगा। तो हाँ जी, मैं कुछ पूछ रहा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर? लिसन, अगर कोई भी चीज रूम टेम्परेचर पे, इट्स नॉट इन द गैसियस स्टेट, वो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, किसी और स्टेट में है,
तो जब भी वो अपने गैसेस स्टेट में आएगी किसी टेम्परेचर पे तो हम उसको बोलेंगे वेपर, और अगर वो रूम टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट में है तो हम बोलेंगे उसको गैस। समझाता हूं और अच्छे से। हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, लिक्विड होती है? गैस। तो हम इसको क्या बोलते हैं? गैस। वाटर रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? जब भी वाटर गैसेस स्टेट में क्या होता है तो क्या बोलते हैं? गॉट इट और नोट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस? सिमिलरली एचटीपी, एचटीपी पे हम क्या करते हैं बच्चों कि जो टेम्परेचर पे ये पेन है ना, ये पेन जिस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो टेम्परेचर इसके लिए क्या होगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को डाटा बहुत ज्यादा याद नहीं रहता, जो आयरन का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है आई थिंक इट्स 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। आयरन का कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? 500 डिग्री सेंटीग्रेड। आई एम नॉट श्योर इन दिस डाटा, मे बी ऊपर नीचे हो सकता है, पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर आप क्या एज्यूम करके चलेंगे? गैस जब मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही एज्यूम करके चलना है, ठीक है? एनटीपी का टेम्परेचर 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1 atm, यहाँ पे 1 बार, 1 atm आल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बार। तो ये मेरे को ज्यादा डिफरेंस नहीं बनाएगा, वो स्लैश लगा के एनटीपी दे एचटीपी दे, इट डजंट मेक मी डिफरेंस। गॉट इट? थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो मैं हैंडल कर लूंगा। तीसरा होता है यहाँ पे एसएटीपी, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर एसएटीपी मेंशन करता है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो 1 बार होता है और टेम्परेचर जो होगा यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज द 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगेन आई हैव टू चेंज द स्लाइड। किसी ने कॉपी नहीं किया हो तो कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट, मोल। मोल को कैसे ड्राइव करेंगे हम? फर्स्ट किससे? मास से। मास से कैसे करेंगे? डिवाइडेड बाय क्या? एटॉमिक मास। क्या? मोलर मास। वेरी गुड बच्चों। कोई अगर एटॉमिक मास बोले तो बोल देना क्या बेवकूफ बना रहे हो। और मोल को कहां से डिवाइड कर सकते हैं? वॉल्यूम से। किससे? वॉल्यूम में क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम को डिवाइडेड बाय कर दो 22.4 से। पर वॉल्यूम के साथ कंडीशन क्या है कि ये होना चाहिए किसमें? लीटर में। किसमें? और दूसरा क्या कंडीशन होनी चाहिए? या तो वो एनटीपी मेंशन करे या एचटीपी। इट डजंट मेक मोर डिफरेंस एनटीपी और एचटीपी। फिर मोल को और किसी चीज से बना सकते हैं? अरे ये तो कॉमन सेंस है बच्चों कि दो चीज मैंने बता दिया। आई हैव टोल्ड यू द टू थिंग्स। वन, mole can I derive from the mass, mole I can derive from the volume. थर्ड वन किससे? अच्छा, कणों की संख्या। वेरी गुड। ये खुद एक नंबर है, ये खुद एक नंबर है तो नंबर से तो बन ही जाएगा ना ये। और कैसे बनेगा? 60 बनाना का मेरे को डजन करना है। क्या करता हूं मैं? डिवाइडेड बाय 12। तो यहां पे भी डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो मेरे को मोल ड्राइव करना आ गया ना। अब कहां कहां से मोल ड्राइव कर सकता हूं? कहां कहां से बोलो? मास, वॉल्यूम, नंबर। अरे तेज बोला करो, मेरे को भी एनर्जी सी मिलती रहेगी। मास, वॉल्यूम, नंबर। ठीक है, मास में किसका डिवाइड करेंगे? मोलर मास का। नेक्स्ट, सिमिलरली मोल से मेरे को क्या मिल जाएगा? मास। और मोल से मेरे को क्या मिल जाएगा? और मोल से मेरे को क्या मिल जाएगा? अच्छा, 22.4 कहां से आ गया? मतलब बच्चों मैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए भी रहूंगा, आप कोई भी क्वेश्चन ला सकते हैं, पूछ सकते हैं सर ये कहाँ से ले आए उठा के, है ना? आप तो अपनी मर्जी से केमिस्ट्री रट रट के हमें पढ़ा रहे हो, तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का आपको लगे कि ये कहाँ से आ गया, मेरे ऊपर इम्पोज कर रहे हैं सारे टीचर मिलके,
यू कैन आस्क मी कि हाउ दिस वन इज ड्राइव। तो ये आता है बच्चे, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, पक्का। तो यहां से अगर मैं 1 मोल का वॉल्यूम कैलकुलेट करूं तो एनआरटी बाई पी आ जाएगा, और 1 मोल में अगर एज्यूम कर लिया 0.0821 और टेम्परेचर कितना मान लू 273 एनटीपी पे, और डिवाइडेड प्रेशर कितना मान लू 1 एटीएम, तो ये आ जाता है 22.4। यहां से ड्राइव होता है पीवी इजिकल टू एनआरटी। पीवी इजिकल टू एनआरटी में जो एनटीपी और एसटीपी की जो कंडीशन है वो सेट करता हूं मैं, तो यहाँ पे 22.4 ड्राइव हो जाता है बच्चों। गॉट इट और नॉट? ओके नाउ, तो मोल से मास बनाना होगा तो व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई हैव टू डू, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब सपोज मोल से वॉल्यूम बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय, और मोल से नंबर बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय एन ए। स्टूडेंट, नाउ आई एम डूइंग सो मेनी न्यूमेरिकल इन द बोर्ड, तो मैं जो एन ए है, जो एवोगैड्रो नंबर है उसको एन ए से रिप्रेजेंट करूंगा और आंसर भी एन ए में ही दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए तो नहीं आया ना कि मैं वो कैलकुलेट कर करके दिखाऊंगा। तो एवरी टाइम आई विल यूज दिस एन ए फॉर एवोगैड्रो नंबर। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, फिर अपने क्वेश्चन पे ही आते हैं। दिस इज द C प्लस O2 गोज टू CO2। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 12 ग्राम 12 ग्राम, और ये आ गया आपका बच्चों कितने ग्राम, कितने मोल है इसके बच्चों 12/12? 1, ये 12/32, 12 बाई ऑक्सीजन 16 होता है ना, तो 16 टू जा 32, तो इसके इतने मोल आए। अब रिमेंबर लिमिटिंग रिएजेंट, रिमेंबर लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है? जो कम होता है अकॉर्डिंग टू स्टोक्योमेट्री। बहुत सारे बच्चों का ये एक मिसकंसेप्शन अपने आप में क्रिएट कर लेते हैं कि जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। नहीं, वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो अकॉर्डिंग टू स्टोक्योमेट्री कम है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्योमेट्री कम है। 1 atom combined with 1 molecule of oxygen, 1 mole will combine with the 1 mole of O2, and that is greater than 1 or lesser than 1? Lesser than 1. So product will form according to limiting reagent. Bachcho, remember, if suppose 20 guests come to your home, so you have enough sugar, tea powder, but you have a little bit milk, means only the 200-300 ml milk. तो जो आप टी बनाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग बनेगी? टी पाउडर के अकॉर्डिंग बनेगी क्या? नहीं, किसके अकॉर्डिंग बनेगी? मिल्क के अकॉर्डिंग, बिकॉज मिल्क लेस क्वांटिटी में है, उतना ही कप ऑफ टी आप सर्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये कम है, तो इसके कितने मोल बनेंगे? अरे 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो यहाँ पे 12/32 से 12/32 मोल ही बनेगा इसका। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द क्या मास, तो इसके लिए मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 44, और 44 से करने पे क्या जाएगा? ये कितना हो जाएगा बच्चों? मैंने गलत कैलकुलेट कर दिया क्या? जो भी हो जाएगा, अगेन 12/32 मल्टीप्लाई बाय 44 ग्राम इज इक्वल टू आंसर। आई डोंट, मैंने बोला कि मैं इसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता कैलकुलेशन के अंदर। आई थिंक ये 16.5 आ जाना चाहिए ना? कितना है? 16.5 ना, तो इज इक्वल टू 16.5 ग्राम एग्जैक्टली आंसर आएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन कर दोगे आप पक्का? How many students are ready to solve such kind of question? And ठीक है, I'm going to give you some question. N2 plus 3H2 goes to 2NH3. If suppose 28 gram of nitrogen is there, 28 gram of hydrogen is there, how many gram of ammonia will form? Within 30 seconds. Within 30 seconds, calculate.
कैलकुलेट विद इन 30 सेकेंड। इतना टाइम नहीं लगता बच्चों इसमें। 34 एग्जैक्ट आंसर है। एग्जैक्ट आंसर इज 34। हाउ मेनी मोल ऑफ N2 आर देयर? 28 बाई इज इक्वल टू 28 बाई 2। नॉट कैलकुलेट द 6। बहुत सारे बच्चे 6 कैलकुलेट करते हैं। ये नंबर मोलर मास में कैलकुलेट नहीं होता। जो ये होता है एग्जैक्टली जो यहाँ पे नंबर सबस्क्रिप्ट में लगा होता है ये कैलकुलेट करते हैं, बाकी नहीं होता है। तो ये 2 आ जाएगा। कितने मोल हुए? 14। 1 मोल हम रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन ना। तो यहाँ पे 1 कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 3 के साथ में। तो ये कितने हैं? 14। ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। ज्यादा को क्या बोलते हैं? ये एक्सेस में। ये एक्सेस में है तो ये कौन हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ अगेन गो टू द स्टोइकियोमेट्री। फ्रॉम 1 मोल हाउ मेनी मोल ऑफ अमोनिया विल फॉर्म? 2 मोल। और ये कितने मोल थे? 1। तो 1 से कितने बनेंगे? अगेन 2 मोल। और इसका मोलर मास कितना होता है? 17 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 34 ग्राम। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे दूंगा इस ऐसे क्वेश्चंस पे। तो 1 और 2 क्वेश्चन और हम सोल्व करेंगे, उसके बाद नया टॉपिक लेंगे। ठीक है। I told you again, I am revising you. I told you what is exactly mu, what is exactly atomic mass, और why we study the mole. ठीक है। नेक्स्ट लो भाई एक और। 4Na plus O2 goes to 2Na2O। 2Na2O। So now it's a 92 gram and it's a 64 gram. How many gram of Na2O will form? Within 30 seconds. Raise your hand. Raise your hand and solve this question within 30 seconds. This much of time. 124. I have to calculate. मैं तो अपने आप ही बना रहा हूं बच्चों। कितने मोल इसके हुए? 92 divided by 23 4 mole. How many mole? 64 divided by 32 2 mole. 1 mole react with कितने mole? 4 mole. 1 mole react with 4 mole. तो यहाँ पे 2 mole कितने के साथ रिएक्ट करेंगे? 8 मोल के साथ में। है कितने मोल? 4 मोल। ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है कि कम है? लेट्स सी हाउ मेनी मोल ऑफ सोडियम आर देयर इन 92 ग्राम? 4 मोल। ऑक्सीजन के मोल कितने आए हमारे? 2 मोल। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद द 4 मोल ऑफ सोडियम। तो यहाँ पे 2 मोल ऑक्सीजन के कितने मोल के साथ रिएक्ट करेंगे? 8 मोल के साथ। और है कितने में मोल? 4 मोल। ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है कि कम है? कम है। अरे A1 4 के साथ रिएक्ट करता है तो 2 8 के साथ करने चाहिए ना। और ये है कितने? 4 मोल। कितने मोल? 4 मोल। तो ये कम हुआ तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ ना अपना। तो 4 मोल से कितने मोल बनते हैं? 2 मोल। तो यहाँ पे कितने मोल है? 4। 4 से कितने ही मोल बनेंगे? 2 मोल। तो 2 मोल का कितना जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 46 प्लस कितना हो जाएगा? 32। कितना हो गया बच्चों ये? 32 नहीं 16। 62 मल्टीप्लाई बाय 2 124 एग्जैक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है। 124 ग्राम बनेगा। हाउ मेनी गॉट इट दिस कंसेप्ट? ठीक है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं बच्चों। उसको बहुत सारा टाइम नहीं दे सकते बिकॉज वी हैव द लिमिटेड टाइम। तो
लेट्स अगेन एक सिंपल mg plus O2 goes to 2mgO. 2mgO. It's a 48 gram. It's a 32 gram. How many gram of MgO will form? Do it fast. Right. Within 10 to 15 seconds solve हो जाता है बच्चों ये. 10 to 15 seconds, not more than this one. Within 10 to 15 seconds. 86. I think 86 is a wrong answer. 80 is the correct answer. How many mole? Divided by 24. 2 mole. How many mole? 32 divided by 32 is equal to कितने मोल? 1 मोल. 1 मोल कितने के साथ रिएक्ट करता है? 1 के साथ. इसका 1 कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 1 के साथ. है कितने ये? 2. 2 क्या एक्सेस है कि लिमिटिंग है? एक्सेस हो गया. लिमिटिंग कौन हो गया? ये. तो इसको लिख देता हूं, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट. 1 मोल से कितने मोल बनते हैं? 2. तो इसका भी 1 था यहाँ पे, तो 1 से कितने बनेंगे? 2. तो 2 का कितना हो जाएगा? 24 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40. और 40 मल्टीप्लाई बाय कितने मोल बनेंगे? 2 इज इक्वल टू 80 ग्राम. गॉट इट? नेक्स्ट. You need more practice on this such kind of question. It's a stoichiometry and limiting reagent. I have finished this one. Okay. Now, next question. Calculate the total number of molecules in 90 gram water. Do it fast. Easy है ना? ओके, हिंदी में थोड़ा सा. वैसे आज रात को आप अपनी बुक दिखा देंगे ना हिंदी वाली, तो सुबह तक मेरे को सारे हिंदी के टर्म्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आई आल्सो स्टडी इन हिंदी मीडियम जस्ट 25 ईयर बैक. तो अभी तो 20 ईयर से इंग्लिश ही चल रहा है. यहाँ पे 90 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ वाटर के अणु होंगे? 90 ग्राम वाटर में वाटर के कितने अणु होंगे? टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 90 ग्राम ऑफ वाटर. 5n है ना? फर्स्ट आई हैव टू कैलकुलेट 90 डिवाइडेड बाय 18 वाट बाय मोलर मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 मोल्स आ गए, और 1 मोल्स हैज द Na मॉलिक्यूल्स, तो 5 Na मॉलिक्यूल्स. ठीक है. एक क्वेश्चन लिखना, आपको वो क्लियर होगा. मैं इंग्लिश में लिखा रहा हूँ, बट आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी. ठीक है. यू रेज योर हैंड कि सर हिंदी में बताओ. समवन ड्रिंक, राइट डाउन द क्वेश्चन. समवन ड्रिंक 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. Someone drink 90 gram of glucose along with 90 ml of water. How many atom of hydrogen? How many atom of hydrogen he or she has drank? Wait. किसी ने 90 ग्राम ग्लूकोज 90 ml पानी के साथ पिया है, और वो हमारे घर पे गेस्ट आया था. अब मेरे को उसको बताना है कि बेटा तूने हमारे घर के इतने हाइड्रोजन के एटम जो है क्या कर लिए हैं? ड्रिंक कर लिए हैं. और डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू आपको दी हुई है 1 ग्राम पर ml. डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम
पर ml बच्चों। Do it fast. How many done? Student, these are the basic question and you should know. These question will help in the entire chemistry. वहाँ पे equation भी होती है, कितना mole बना, product बना. If you don't know this one, you can't do anything in the entire chemistry. Let's see. 90 gram glucose means molar mass of glucose is 180.5 moles. The density of water is 1 gram per ml. That means 90 ml is equal to 90 gram. 90 divided by 18 is equal to 5 moles. And 0.5 moles of C6H12O6. 0.5 moles means 0.5 into Na molecules of क्या हुआ, किसके ड्रिंक किए उसने, C6H12O6 के, इसके ड्रिंक किए ना. एंड 1 मॉलिक्यूल है 12 हाइड्रोजन, तो टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे कितना कंज्यूम हुआ, टोटल H एटम is equal to 0.5 into Na multiply by 12 is equal to 6 Na. 6 Na हाइड्रोजन के एटम कहां से कंज्यूम किए हैं, ग्लूकोज से, और वाटर से 5 into Na मॉलिक्यूल वाटर के ड्रिंक किए, और डिवाइडेड बाय वाटर का मॉलिक्यूल्स में 1 मॉलिक्यूल है 2 हाइड्रोजन एटम, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10 NaH एटम. तो टोटल H एटम कितना आ गया, 16 Na ना. गॉट इट और नॉट? मेरे को दोबारा से बताना है बच्चों. टेल मी if you think I have to tell again and again, so on my side no issue. I am a teacher. If you ask me 20 times with your smiling face, I'll tell you 21 times. Got my point or not? But your face must be smiling. 90 gram of glucose, that means 0.5 moles of glucose. 90 ml of water, that means 90 gram 0.5 moles of water. 0.5 moles of glucose means 0.5 into Na molecules of glucose. 0.5 Na molecules of glucose means 1 molecule has the kitne hydrogen atom, 12 hydrogen atom. So I have to multiply by 12. So 6 Na atom, 6 Na hydrogen atom he consumed from the glucose, and 10 Na hydrogen atom he consumed from the water molecules. So total 16 Na atom he or she has drank. Got it? Next, calculate the total number of molecules in 11.2 liter of CO2 at NTP. This is very basic question. Point 0.5 Na. It's a volume. I have to convert into the
moles. So 11.2 divided by 22.4 is equal to 0.5 moles आ गए, 0.5 into Na molecules आ गए. Next, one more question. If someone drink 46 gram of ethyl alcohol with 54 ml of water, how many oxygen atom he or she has consumed? Do it fast. Density of water is equal to 1 gram per ml. Thank you, sir. Molar mass of ethyl alcohol is 46. 46 divided by 46, 1 mole. 1 into Na molecules of ethyl alcohol. And 1 molecule has the 1 oxygen atom. Total oxygen atom. 1 into Na into 1 means Na atom from oxygen side. 54 ml means 54 ml is equal to 54 gram. 54 divided by 18 is equal to 3 moles. And 3 into Na molecule. 1 molecule of water has 1 oxygen atom. So that means total oxygen atom into 1. So 3 Na plus 1 Na is equal to total 4 Na atom of oxygen he or she has drank. Got it? One more question. Calculate the total number of electron in. Calculate the total number of electron in. It's an NCERT question. 60 ग्राम मीथेन. 16 ग्राम मीथेन के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? जल्दी डू इट फास्ट. 16 ग्राम मीथेन. How much? हाँ, आप लोग भी बताओ. You people are from Andhra. I visit West Godavari. I'm married. And you people? Maharashtra. Okay, good. Moles 16 divided by 16, it's a molar mass, is equal to 1 moles. 1 into Na molecules. One molecule has carbon 6, hydrogen 1, multiply bar is equal to 10 इलेक्ट्रॉन ना. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 Na. Calculate the total number of proton in. Calculate the total number of proton in 46 gram of Na positive.
Do it fast. Calculate the total number of proton in 46 gram of Na positive. It's a too easy. The answer must be within 4-5 seconds. जी सर. Total number of proton. Not odd. 22. 22. Exact answer. How many gram? 46. Molar mass 23. 2 moles. 2 moles means 2 Na. क्या आ जाएगा यहाँ पे? Atoms, ions, molecules. 2 Na, ions and 1 ions carry कितना? 11 sodium 23. 11 proton. Suppose I ask here the number of electron. So then 20 Na. Because 1 electron has lost. Got it? तो वहां पे आपको ट्रैप कर सकता है कि वो Na पॉजिटिव दे दे, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कराए. तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया. अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो आ जाएगा 20 Na. और सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इट्स ए 22 Na. बिकॉज प्रोटॉन ना तो बाहर जाते हैं ना अंदर आते. नेक्स्ट. होप यू हैव डन द स्टोइकियोमेट्री. Next, one more topic, percentage yield. Percentage yield. First, I will tell you the concept. Grab करना अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा. If suppose N2 plus 3H2 goes to 2NH3. Got it? It's a 28 gram, it's a 6 gram. And this one is the 34 gram will form na? Exactly. If 28 gram of nitrogen and 6 gram of hydrogen react, they will form exactly 34 gram of ammonia. Remember, इस यूनिवर्स में कोई रिएक्शन कंप्लीशन को नहीं जाती. केवल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सम एसिड बेस रिएक्शन, दे गोज फॉर कंप्लीशन. अदरवाइज जितनी भी आपने नेम रिएक्शन पढ़ी है, कैनिजारो, एल्डोल, पार्किन, और सबका यील्ड जो है 60 to 85% के बीच में रहता है. बिकॉज ये यील्ड को हम बहुत अच्छा यील्ड मानते हैं बच्चे. गॉट इट? तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन भी 100% आगे की तरफ नहीं जाएगी कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट विद द 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीटली. तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म द 17 ग्राम ऑफ अमोनिया. What is the percentage yield of this reaction? 50%. I take the simple digit ना. अगर 34% बनता है तो 100% रिएक्शन हुई है. और अगर ये 17 ग्राम बना है तो कितने परसेंट रिएक्शन हुई है? तो परसेंटेज यील्ड कितनी हुई इस रिएक्शन की? 50%. कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट्स सी. फार्मूला भी हम ही डिजाइन करेंगे यहीं से. परसेंटेज यील्ड. ये 50% कब आएगा? ये 50% आएगा जितना बना एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटली. वो कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटली वो सब छोड़ देना. यहाँ पे ऐसे लर्न करना. 17 ग्राम जितना बना है सच में, और जितना बनना चाहिए था पेपर पे, जितना बना है सच में, और डिवाइडेड बाई जितना बनना चाहिए था मेरी कैलकुलेशन पे, और मल्टीप्लाई बाई क्या कर दो? 100. तो ये ऐसे करके लर्न करना. कैलकुलेटेड, एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्व्ड, उसमें आप हो जाएंगे कंफ्यूज. आपको पता नहीं चलेगा कब मुझे ऑब्जर्व्ड लेना है और कब एक्सपेरिमेंटल क्या है. बस रिमेंबर, जितना बना सच में, जितना बनना चाहिए था मेरे पेपर पे, और मल्टीप्लाई बाय 100. One question from the percentage yield.
N2 plus 3H2 goes to 2NH3. If 56 gram of nitrogen react with the 6 gram of hydrogen and it form the 8.5 gram of ammonia, what is the percentage yield of the reaction? What is the percentage yield of the reaction? It's a very easy. Within 5 seconds you have to give the answer. Because the last question मैंने same concept पे कराया है. How much? 25% is the correct answer. It's a 56 gram. It's a 2 mole. It's a 3 moles. 1 mole react with 3 mole. 2 mole react with the 6 mole. It's a 3 mole. It's a limiting reagent. It's a limiting reagent. From 3 mole it form the 2 mole. और 3 मोल ही ये है. 3 मोल से ये कितने मोल बनना चाहिए था? 2 मोल बनना चाहिए था मेरे पेपर पे. और 2 मोल्स इज इक्वल टू 34 ग्राम. ये मेरे पेपर पे बनना चाहिए था, लेकिन सच में ये बना तो 8.5 डिवाइडेड बाय 34 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 25%. नेक्स्ट कंसेप्ट बच्चों, मैं एक एक दो ही क्वेश्चन करा पाऊंगा क्योंकि आपके लिए भी बहुत कीमती टाइम है, तो हर एक टॉपिक पे नेक्स्ट लिखेंगे परसेंटेज प्योरिटी. परसेंटेज प्योरिटी percentage purity means sometimes we have to see how much percentage this compound is pure. Let's see one example. CaCO3. If I heat this one, it forms CaO plus CO2. Again, very simple example. If suppose I am taken the 100 gram of CaCO3, 100 gram of CaCO3 and 22 gram of CO2 is formed. 22 gram of CO2 is formed. How much percentage? How many percentage CaCO3 is pure? Tell me. CaCO3 कितने परसेंटेज प्योर है? इट्स टू इजी. कितना? अरे उसको माइक दो, बच्चे को, बच्चा परफॉर्म कर रहा है तब से ही. 22%. It's a wrong answer. It's a very easy, student. It's a 100 gram. It's a molar mass is also 100. The 100 divided by 100 is equal to 1 mole. From 1 mole of CO and 1 mole of CO2 is formed. If 1 mole of CO2 is formed, that means 44 gram CO2 should be formed. Should नहीं, must be formed. And कितने ग्राम बना है ये? तो बना कितना है मेरा? 22 ग्राम. बनना कितना चाहिए था? मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू 50%. दैट मीन्स ये जो CaCO3 का कंपाउंड है ये 50% प्योर था. कितने परसेंट प्योर था? 50% प्योर था. नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दे देता हूँ 50 ये परसेंटेज प्योरिटी पे, बिकॉज वी हैव सो मैनी कंसेप्ट. ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट ना पड़े तो इसलिए मैं CaCO3 दे देता हूँ और ये ले लेता हूँ मैं 400 ग्राम और 400 ग्राम से मेरा CaO प्लस CO2 बनता है और ये मेरा 56 ग्राम बनता है. टेल मी हाउ मेनी परसेंटेज CaCO3 इज प्योर? डू इट फास्ट विद इन 5 to 6 सेकेंड. टू इजी. कैल्शियम 40 होता है
एंड इट्स स्मॉलर मास इज 100 होता है. डू इट. डू इट, डू इट, डू इट. इतना टाइम नहीं होता बच्चे इसमें. हाँ बोलो बोलो बोलो. यू हैव डन इट. हाँ 100%. हाँ आई थिंक इट्स रॉन्ग आंसर. बच्चों गलत आंसर के बाद अपने वो ऐसा शेम सा मत फील किया करो, प्राउड फील किया करो कि हाँ मैंने कुछ हिम्मत की और मेरा आंसर गलत आ गया, कोई बात नहीं, मैं ही सीखूंगा अब यहाँ पे. अरे इतना अभी तो बताया बच्चे, दैट इज अ वेरी बेसिक फॉर केमिस्ट्री. इट्स अ वेरी बेसिक. एक 8th क्लास स्टैंडर्ड भी बच्चा इसको समझ सकता है. अभी एक बताया था 400 ग्राम मतलब कितने मोल. कितने मोल. 4 मोल. कितने मोल. 4 मोल्स. 1 मोल से कितने मोल बनता है. अरे स्टोकियोमेट्री देखो रिएक्शन की. 1 मोल से कितने मोल. 1 मोल. 4 मोल से कितने मोल बनना चाहिए था. 4 मोल्स. ये कितने मोल बना है. 1 मोल. कितने मोल बना है. तो कितने परसेंटेज आई. 25%. कितने मोल बना है. 1 मोल. कितने मोल बनना चाहिए था. 4 मोल मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 25%. ठीक है. कौन बच्चे बताएगा हमने कितने टॉपिक कवर कर लिए. रिवाइज व्हाट टुडे वी हैव लर्न. We should remember all these topics what we have studied today. Otherwise, tomorrow कुछ होता है फिर वो स्किप हो जाता है. फर्स्ट मैंने आपको एएमयू सिखाया, एटॉमिक मास सिखाया, मोल सिखाए, स्टोकियोमेट्री सिखाई, लिमिटिंग रिएजेंट सिखाया, परसेंटेज यील्ड सिखाई और परसेंटेज प्योरिटी सिखाई. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक चले या इस पे एक क्वेश्चन और दूं. एक क्वेश्चन और लो भाई. भाई CaCO3 का फिर KClO3 का दूंगा तो इक्वेशन हो जाएगी हार्ड. तो मैं दे सकता हूं SO3 और ये SO3 का SO2 प्लस O2 2SO3 2SO2 प्लस O2. तो 80 ग्राम ऑफ SO3. 80 ग्राम ऑफ SO3 gives 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. कितने ग्राम. What is the percentage purity of this compound? What is the percentage purity of this compound? रजत माइक दे उस बच्चे को. अच्छा आप नहीं बताओगे. इधर से महाराष्ट्र टीम. यू पीपल ऑल फ्रॉम महाराष्ट्र. ऑल. नहीं. गुजराती किधर है भाई. गुजरात. भाई बोल दो भाई. मैं गुजरात रह के आया हूं इतने साल. गुजरात नहीं है. ठीक है यार. पेपर में तो था शायद. नेक्स्ट सी. अच्छा 80 ग्राम. हाउ मेनी मोल आर देयर. 1. 80 divided by 80 is equal to 1. मोल बनना है ना. तो यहां पे 1 मोल से कितना बनना चाहिए. 0.5 मोल्स. ये बनना चाहिए ना. फ्रॉम 2 मोल ऑफ SO3 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड. तो फिर यहां पे फ्रॉम 1 मोल ऑफ SO3 0.5 मोल ऑफ O2 शुड बी फॉर्म्ड. तो 0.5 मोल कितना हो गया. 0.5 मल्टीप्लाई बाय 32 इज इक्वल टू कितना हो गया. 16 ग्राम ना. ये बनना कितना चाहिए था.
ये बना कितना है, मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 25%, 25%. One more topic. वन मोर, जो आपको कुछ पता नहीं होता था, ये चीज एक सीक्रेट और पता चलेगा आपको. आई टोल्ड यू कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008, और इसका मतलब होता है कि द एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 टाइम्स हैवियर देन किससे, 1 AMU से. यहाँ पे दो चीजें है बच्चे, ये जो 1.02288 आया ना, ये दो फैक्टर की वजह से यहाँ पे ये फ्रैक्शन आते हैं. पहला फ्रैक्शन तो होता है कि भाई वो AMU से कितना हैवी है, और दूसरी चीज इस यहाँ पे होती है कि वो एवरेज भी होता है. वो क्या होता है, एवरेज भी होता है. एवरेज कैसे होता है, तो आपने एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना होता है. क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, कौन कौन से, एक 35 होता है, एक 37. 35 कितने परसेंटेज होता है, आई थिंक 80%, नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, देख लेना, ये 75 भी हो सकता है. तो 35 मल्टीप्लाई बाई 80%, अगर मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं बच्चों, कितने परसेंट, और प्लस 37 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये इसका एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है. ये इसका क्या आ जाएगा, एवरेज. अब एक बोरोन का क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी में, तो वो वहां पे फिट करने की कोशिश करता है बोरोन वाले क्वेश्चन को. कैसे फिट करता है, कि वो बोलता है कि बोरोन के दो आइसोटोप है, एक बोरोन 9 है और एक बोरोन 11 है, ठीक है, और उसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास मैं अपने मन से ले रहा हूं, 10.5 है, 10.5 है. तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बोरोन 9 एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बोरोन 11. तो how I will calculate this one? तो 10 percentage x मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा 9, x मल्टीप्लाई बाई 9, और ये फिर कितना परसेंटेज होगा 100 माइनस x मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 100. इसको अच्छे से लिख देता हूं, 10.5 उसने एवरेज दे दिया, मैंने उसका x परसेंटेज मान लिया 2 रीजन, कि एक तो ये एमयू से इतने टाइम हैवियर है, और दूसरा ये एवरेज भी होते हैं. ये क्या होते हैं, एवरेज. कैन एनीवन टेल मी, हाँ ठीक है, करते हैं अभी बच्चों के साथ, मेरे को तो मजा आ रहा है, मुझे नहीं पता बच्चों का. ठीक है, एक पॉइंट और. हाँ हाँ हाँ, क्या बताना चाह रहा था मैं यहाँ पे, हाँ एक पॉइंट ये बताना चाह रहा था कि हम एएमयू में कार्बन को ही क्यों लेते हैं बच्चों. Why we define why should be carbon mass of one atom of carbon divided by 12 and is equal to 1 AMU. यार मेरा मन नहीं कर रहा 1 AMU को कार्बन से लेने का, मैं होता तो ऑक्सीजन लेता या कुछ फ्लोरीन क्लोरीन ले लेता, मैं मानता ही नहीं किसी की बात, जल्दी से, और पूछ लो स्टाफ से भी, अगर मैं किसी की बात मानता भी हूँ, मैं नहीं मानता किसी की बात जब तक मेरे को वैलिड प्रूफ ना मिल जाए.
भाई क्यों ले रहे हो तुम कार्बन ही? मैं तो हाइड्रोजन लेता। क्या लेता? हाइड्रोजन लेता, क्योंकि उसका मास भी सबसे कम है और उसके कंपेयर में सारे मेजर भी हो सकते हैं। वही सबसे छोटी वही तो है ना, हाइड्रोजन। गॉट माई पॉइंट और नॉट? तो फिर ये वाला मेरे को इश्यू आ गया कि भाई, भाई साहब आप 12 ही क्यों ले रहे हो, कार्बन 12? मैं तो हाइड्रोजन ले लेता, क्लोरीन लेता या कुछ और ले लेता। तो उसका या तो रीजन बताओ, नहीं तो मैं आपकी बात नहीं मानता। ठीक है, क्योंकि आपने तो पढ़ रखा है, रट्टा मार रखा है और मेरे को भी रट्टा ही लगवा रहे हो। तो इसका रीजन देखो क्या होता है। आ, ध्यान से समझना इसको। आपको बुक्स में ना आइसोटोप की बात मिलेगी, ठीक है, पर वो आपको ग्रैब नहीं होगी। जैसे हाइड्रोजन क्या होता है, 1H1 1H2 1H3। गॉट इट? तो वेन एवर आई कलेक्ट द हाइड्रोजन, तो उसमें प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम तीनों होंगे। अब लेट्स सी, यहाँ पे एटॉमिक मास 1 है और यहाँ पे कितना है, 2। तो ये इसका डबल ही हो गया ना सीधा। कितना हो गया? तो अगर मैं एवरेज लूंगा और इसका परसेंटेज थोड़ा सा भी, जैसे एक सैंपल मैंने यहां से कलेक्ट किया और दूसरा सैंपल दूसरी जगह से कलेक्ट किया और वहां पे ड्यूटेरियम के सैंपल में 1 या 2% की भी गड़बड़ हुई, तो मेरा जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो तो गड़बड़ ही हो जाएगा। दोनों जगह अलग अलग आएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या कहते हैं, वहां पे ऐसा लिखा होगा कि भाई कार्बन के आइसोटोप नहीं होते, तो आप बोलना होते हैं कार्बन के आइसोटोप। कार्बन के आइसोटोप कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, कार्बन 15 भी होता है। पर एक्चुअली इसमें कार्बन 12 ना हर सैंपल में 98 पॉइंट आई थिंक समथिंग परसेंट, 98 पॉइंट समथिंग परसेंट, दैट फिगर आई नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली। वो मतलब 98% से भी ज्यादा, 12 ही है मेरा, हर जगह से सैंपल लेता हूं। तो अब मैं कहीं से भी सैंपल लूं तो, और ये तो मेरा 0.001 ऐसे करके कुछ परसेंटेज होता है, ये कुछ 1.5% के आसपास या 1.3% के आसपास होता है। तो मेरा वेरिएशन ज्यादा नहीं आएगा ना। अब एक तो 12 और 14 में डबल का अंतर है क्या? नहीं, इसमें परसेंटेज वाइज बहुत कम डिफरेंस हुआ। और दूसरा, इसका जो परसेंटेज रहता है वो 98 से भी ज्यादा परसेंटेज रहता है, तो मतलब 98% तो वही कंट्रीब्यूट करेगा जो परसेंटेज में। तो इसलिए ही हम कार्बन 12 लेते हैं। दैट्स व्हाई वी टेक द कार्बन 12। वहां पे आइसोटोप की बात मेंशन रहती है बुक्स वगैरह में, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो कार्बन 12 है सर, दैट कंट्रीब्यूट मोर देन 98%। तो अगर मैं कहीं और से सैंपल लेता हूं तो हर जगह मुझे 98% से ज्यादा के सैंपल में तो कार्बन 12 ही मिलता है। सेम थिंग ऑक्सीजन के साथ होती है। हमने हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन सोचा था, ये भी ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 होता है, तो इसकी भी काफी परसेंटेज हमें मिलती है, वेरिएशन ज्यादा मिलता है। तो दैट्स व्हाई वी चूज द कार्बन। बच्चों, मैं आपके बहुत सारे टॉपिक कवर नहीं कर पाया, क्योंकि अभी कंसंट्रेशन टर्म्स के बहुत सारे हैं और यहाँ पे इडोमेट्री आती है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन आता है, क्योंकि किसी को बैलेंसिंग ही नहीं आती है। किसी को क्या नहीं आती है? बैलेंसिंग ही नहीं आती है। तो बैलेंसिंग नहीं आती है तो उससे वो क्वेश्चन होगा ही नहीं। जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन दे दूं बच्चों, भाई थोड़ा सा वेट कर लेना स्टाफ, मैं ये वाला एक इक्वेशन दे दूं, P4 प्लस NaOH प्लस H2O गोज टू PH3 प्लस NaH2PO2। बहुत सारा मटेरियल है बच्चों आपको देने के लिए, तो और मैं आपको बोलूं कि इसे बैलेंस करके दिखा दो, तो होप आप बैलेंस कर देंगे इसको। आप तो कर ही देते हो हिडन ट्रायल से, तो जल्दी से करके दिखाना। आप कर ही देते हैं ना, जैसे हमें तो पूरा यकीन होता है अपने आप पे। अरे बैलेंसिंग इधर ला दे, कभी करके दिखाई। हम्म। तो एक बार इसको करके दिखा दो। जो बच्चा बैलेंस कर दे वो हैंड रेज कर देना।
अच्छा बच्चों, क्या होता है कि अगर आप इसको बैलेंस करने लग जाएंगे तो वो क्वेश्चन तो नहीं होगा, वो बोलेगा 4 मोल ये है, 2 मोल ये है, या 1 मोल ये बना, ये मोल कितने बनेंगे। तो अब फॉरगेट अबाउट दी कि मैं मोल बना पाऊं, क्योंकि मेरे को स्टोकियोमेट्री नहीं पता, है ना। तो कल एक ऐसा टेक्निक सीखेंगे जिसमें हमें कोई बैलेंसिंग वैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। और उस टेक्निक से क्या होता है कि हम कोई भी रिएक्शन है बिना उसकी स्टोकियोमेट्री के सीधा प्रोडक्ट बताएंगे, भाई ये इतने ग्राम था तो वो जाके इतने ग्राम बनेगा। और यहाँ पे बैलेंसिंग का फंडा ऐसे नहीं होता हिट एंड ट्रायल का। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है बच्चे। 1 मिनट का टाइम देंगे तो मैं इसको 30 सेकंड में बैलेंस कर दूंगा। और ये बैलेंसिंग का एग्जैक्ट तरीका होता है कि भाई अपना फेवरेट कलर तो यूज किया नहीं आज मैंने, ये 0 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ 0 से यहाँ आता है तो ये -3 का ऑक्सीडेशन नंबर है। और यहाँ से यहाँ आता है तो +1 का ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ से यहाँ गया तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। और यहाँ से यहाँ गया हुआ है तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है। और बैलेंसिंग में बस एक ही खेल है, जिसको लॉस एंड गेन इक्वल करना आ गया, उसकी रिएक्शन 1 सेकंड में बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पे 3 गेन है, यहाँ पे 1 लॉस है, तो लॉस भी 3 होने चाहिए ना। कहाँ जाएंगे रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन, रहेंगे तो इक्वेशन में ही ना। तो लॉस 3 होने चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 3 करूं तो 3 के लिए इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। और बाकी छोटी मोटी फॉर्मेलिटी होती है वे पूरी करनी होती है। छोटी मोटी क्या पूरी होती है कि भाई सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के कोई एटम अगर बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस अपने मन से कर दो। 3 सोडियम है, एक ही सोडियम है तो 3 लिख देता हूं। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, वहां पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। और ये बैलेंस हो गई बच्चों इक्वेशन। तो बैलेंसिंग आल्सो विद इन ए 10 सेकेंड का खेल होता है, अगर आपको सच में केमिस्ट्री पता है। और अगर आपके रट्टे चल रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो मेरे को आता है, मैं तो जेम्स बॉन्ड का क्या हूँ भाई हूँ, तो उसको तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। तो बच्चों आपको इसके कुछ टॉपिक जैसे पीओसी, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स ये कल करनी है, या मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँ जिसका नाम होगा सॉलिड स्टेट। एंड दैट नीड लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। और क्योंकि वो आपको एडवांस में आएगा ना, और आपने मेंस में पढ़ा नहीं होगा कभी भी, नहीं पढ़ा ना। तो या तो इधर आई विल स्टार्ट द सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट, जो अभी आप बोलोगे या मेरे ये जो टॉपिक बचे हुए उसको कंप्लीट करें, वट एवर यू लाइक, कि भाई हमें फर्स्ट चैप्टर में ही सबसे पहले कुछ महारत आ जानी चाहिए, तब हमें वी शुड मूव टू द सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। तो आप बता देना, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, क्लास ओवर ना मैम, रजत भाई। आई थिंक इट्स टाइम इज 6:30 ना। अच्छा, कल के लिए कितने बच्चे हैं कि ये फर्स्ट टॉपिक को ही कंटिन्यू करें, हैंड रेज करना। ठीक है, इसके बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, तो टुमारो वी विल डू आल्सो मोल कांसेप्ट। और इसके जितने भी पीओसी वगैरह होती है, इडियोमेट्री वगैरह आती है, कंबशन रिएक्शन वगैरह आती है, वी विल कवर ऑल दीज थिंग एंड देन वी विल मूव द नेक्स्ट चैप्टर। होप यू एंजॉय द लेक्चर। यार मजा आ गया।